Hello CA aspirants, welcome back to my channel and specifically talking about the accounts subject. Start preparing from today. So I would say that your first paper, that is accountancy, is on 13th, and I think you should start studying for it from today itself, because if the first paper goes well, then a sense of confidence gets built up for the remaining papers. So पहले पेपर के लिए एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ, एम करो पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है एंड 80 प्लस 90 प्लस तो आराम से स्कोर करना ही है. सो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी, हाउ यू शुड प्लान योर full 4 to 5 days. Starting off firstly you should start with a bunch of free mark chapters, which is what I used to call it when I was preparing for my CA foundation. This bunch includes the chapters BRS, inventory, depreciation, rectification of errors and accounting process. Do these 5 chapters so thoroughly कि इसमें तो आप गारंटी दे सकते हो कि मेरे को 5 मार्क का क्वेश्चन आए या 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैं फुल स्कोर करने वाला हूँ. आफ्टर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस, secondly, the most important thing is don't solve each and every question from the module at this point of time, because अभी आपको how much you should study is more important rather than how efficiently you should study, because जितना आपने पहले से पढ़ के रखा है वो पूरा यू नीड टू कवर इट विद इन दिस 5 days. अगर पूरा कवर ही नहीं कर पाओगे, अब ये 5 चैप्टर्स तो फुल हर एक क्वेश्चन अच्छे से करके गए, फुल फेयर वर्क में अच्छे से, तो ये क्वेश्चन में तो आपको इनके क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आ जाएंगे. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर्स? ऐसा नहीं करना है. तो डू ओनली दोज क्वेश्चंस विच आर स्टार मार्क्ड और विच cover the major chunk of the chapter in that particular question only. Do only those questions, and RTPs and MTPs में से भी अभी पूरा सॉल्व करने मत जाओ, तुम पूरा सिलेबस ही कवर नहीं कर पाओगे. डू दी ओनली इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चंस, एंड अगर तुमको चाहिए तो फर्स्टली बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस वॉच दी वन शॉट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर chapter. I follow the same strategy. I watch one shot of Sir Hardik Manchanda for accountancy. So after preparation booster was the series name. So after doing these 5 chapters, you should jump over to partnership accounts, because the dissolution of partnership is newly added, and I think हमारे attempt में भी आया था, तो I feel like इस बार भी आ सकता है उसके chapter. And mostly admission, retirement and death आपने 12th में already कर चुका है, आपने किया हुआ है. So you just need to brush up those chapters, and dissolution पे ज़्यादा stress देना, because हमारे attempt में भी एडमिशन भी आ गया था एंड डिसोल्यूशन भी आ गया, तो ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है पार्टनरशिप अकाउंट्स. आफ्टर डूइंग द पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में आप अगर आपने पहले से पढ़ के नहीं रखा है तो यू कैन गो फॉर इशू ऑफ शेयर्स, विच इज़ लाइक ईजी, बिकॉज आपने 12th में करके रखा है. ऑल दी इशूज़ यू कैन सॉल्व. रिडेम्पशन अगर आपको जम नहीं रहा है तो फिर फॉर नाउ यू कैन कीप इट असाइड. आफ्टर सो फर्स्ट द 5 chapters BRS, inventories, depreciation, rectification of error and accounting process. After that partnership accounts, and now moving forward with the final accounts and NPO. इसमें भी आप पूरे सम with proper line, scale, trial balance बना सारे अकाउंट्स अच्छे से फॉर्मेट बना के मत करना. टाइम किल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस रह जाएगा. रफ में बस सॉल्व करो. इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आपके बुक में जो मार्क्ड है उनको एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स आपको काम आएंगे. और क्वेश्चन में एग्जाम में भी, मेरे टाइम में भी NPO का डिट्टो क्वेश्चन वॉज कॉपी पेस्टेड इन द क्वेश्चन पेपर. सो मॉड्यूल को फर्स्ट प्रेफरेंस दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आफ्टर डूइंग दी फाइनल अकाउंट्स एंड NPO ऑल्सो, आपको now the time is for the theory comes for around 20 marks. You can't give up on theory, so solve the theory questions as well. Solve the true or false given at the back side on the exercise in the practical questions of module, which is more than sufficient. इतना ही करो. ट्रू और फॉल्स आप याद रखो, लर्न करो. कंटेंट याद नहीं रह रहा, बस रीड करके जाओ. बिलीव मी, आपको एग्जाम के दिन पे वो कंटेंट अपने आप रिकॉल होते जाएगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग द थ्योरी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स थ्योरी, आई वुड से पूरा लर्न करने मत जाओ. अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने खुद ने लिखा था, मुझे अच्छे मार्क्स मिले. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेड पॉइंट्स अच्छे से लर्न करना. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स एक्सेट्रा. ऐसे मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, बट दिस वॉज ए क्वेश्चन विच ऑल्सो केम एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एज वेल. सो इनके हेड पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, एंड यू आर गुड टू गो. डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट गो फॉर लर्निंग एनीथिंग न्यू, बिकॉज आप वो करने जाओगे आप पहले का भूल जाओगे. इसलिए वॉट एवर यू हैव स्टडीड, जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट थिंग्स only. And yeah, all the best of luck for your exam, and you will definitely crack this September 24 attempt, and this is going to be your last attempt. Bye, thank you.